Very good morning, all of you. Welcome to your TSN English class. This is your chapter number 1 from your book Flamingo, and the chapter name is The Last Lesson. So, today we'll start the second part of the chapter. And before this, I would like to tell you some previous paragraph summary. That is, there's a boy in the school whose name is Franz, and how that boy Franz, how he is feeling something unusual um, in the path from school, from his home to school, and how he thinks that everything is changed on that particular day, and how the school teacher is dressed in some unusual kind of clothes which he never wore except on inspection or prize days, and how the situation of his country is changed after the war of Prussia and France. So, students, let's read the chapter from this line or this paragraph. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. So, and when friends enter in the school and he take his position in the classroom, and Mr. Hamill was not scolding him because of his because he came too late in the school, and he dressed up very well. He wore black silk cap, all embroidered. He wore some kind of a green coat and wore a embroidered shirt, एंड हिज स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एट द सेम टाइम कि किस तरह उसके लिए उसका स्कूल भी है थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था उसे. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेस. और उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये लगी कि उनके स्कूल की बैक बेंचेस जो है फ्रेंड्स की क्लास की, वो हमेशा खाली रहती थी, वर ऑलवेज एम्प्टी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्फ. बट आज का दिन था जब उसके स्कूल की बैक बेंचेस पे उसी के गांव के लोग जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे, जिसमें ओल्ड हॉजर, दैट मीन्स ओल्ड फार्मर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपनी 3 कॉर्नर या तिकोनी सी टोपी पहने हुए था, हैट पहने हुए था. द फॉर्मर मेयर, उनकी गांव के मेयर जो थे वो, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. और काफ़ी ऐसे लोग जो अच्छी डेजिग्नेशन पे थे वो वहाँ बैठे हुए थे. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So हर कोई जो है वो उस दिन दुखी दिख रहा था. एन ओल्ड हैज़र बॉट एन ओल्ड प्राइमर. और जो ओल्ड फार्मर है वो अपने साथ में कुछ ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड एट द एजेस, और उसने उसे हाथ में किनोर उस जो उसके पास था प्राइमर जैसा, उसने उसको हाथों से किनोर से पकड़ रखा था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने ऐसे अपने नीज पर ही खोल के रख रखा था. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और उसने उसे जिस तरह खोल रखा था और अपने स्पेक्टिकल्स को पहना हुआ था और वो उसके पेजेस को देख रहा था. While I was wandering about, all Mr. Hamill mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, which he had used to me, said my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. And now, the boy Franz, he understood everything that what was going on, because
न वाई ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, बिकॉज उसको अभी तक सारी सिचुएशंस जो हैं वो उसे थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही थी कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा सब कुछ चल क्यों रहा है, वो बुलेटिन बोर्ड पे लोग क्या पढ़ रहे थे, वाई वन ऑफ द ट्रेनी या पेरेंट्स जो है उसने से क्यों कमेंट करा, आज उसके सर ने अनयूजुअल कपड़े क्यों पहने हुए हैं, स्कूल में से इतनी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, यूजुअली स्कूल में हसल बसल वाला सा माहौल होता है, आज बच्चे भी इतना ज़ोर से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। और आज स्कूल में कुछ ऐसे लोग थे जो कि मेयर थे या पोस्ट मास्टर थे, कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, आज उसके स्कूल में बैक बेंचर्स पे बैठे हुए हैं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था जितने में मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन। एंड जिस जेंटल टोन में मिस्टर हैमिल ने फ्रेंड्स को बोला था कि फ्रेंड्स बैठ जाओ अपनी सीट पे, उसी जेंटल टोन में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। उन्होंने कहना स्टार्ट करा कि फ्रेंच भाषा का आज ये आपका आखिरी लेसन है, और द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलाउस एंड लोरेन। और आगे से आप लोग कभी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। ये ऑर्डर जो है ये जर्मन प्रूशिया ने दिया है कि अब से सारे स्कूल्स में केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज, और कल से आप फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टमोरो, और आपके कल से न्यू जर्मन टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज आप सब लोगों की फ्रेंच क्लास का, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है दैट इज़ फ्रांस, फ्रेंच पीपल की मातृभाषा फ्रांस होती है, तो फ्रांस जो है उनके फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच लोगों की, फ्रेंच लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो है आज उसको पढ़ने के लिए आपके पास आखिरी दिन है। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ध्यान लगाकर इस भाषा को सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। एंड नाउ जो फ्रेंड्स है वो कह रहा है उसके लिए ये वर्ड्स, इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम। ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे ये सब कुछ समझ में आता है कि ओ वो टाउन हॉल में क्या हो रहा था, वहाँ जो होर्डिंग्स पे और जो बुलेटिन बोर्ड्स पे लगा हुआ था वो सब कुछ जो लिखा हुआ था, दैट इज़ वाई जो लोग हैं वहाँ पर क्राउड इकट्ठा हो रहा था। सो जैसे उसके टीचर एक्सप्लेनेशन देते हैं तभी फ्रांस को सब कुछ समझ में आता है कि ओ इसीलिए आज सब कुछ या सारा जो माहौल है उससे बदला बदला नज़र आ रहा था। थैंक यू चिल्ड्रन, विल स्टार्ट, आई विल गिव यू नेक्स्ट class in your next part of this chapter, which is the third part of your chapter.